Hi, this lesson is about vocabulary used to talk about medical problems and healthcare, which is going to be useful for IELTS aspirants in all 4 subtests and also for people who just want to improve their English and have a wider range of vocabulary. I would strongly advise you to have a notebook ready and note down the meanings of these words and the example sentences in your own hand because it will really help you memorize and retain them better. This whole lesson is going to be in parts, so make sure you watch all the parts in order to learn all these words. You can pause the video in order to note down stuff. I'll try to go as fast as possible because I don't want the videos to be too long. You could also make MP3 tracks of these videos and listen to them a couple of times for revision and reinforcement. The first word is disease, illness, sickness, ailment, बीमारी, medical disorder, medical problem, health problem. So first of all, we'll do some collocations. The words that are commonly used with disease when you talk about health problem or disease. What are the words that you use before and after this word? So first of all, some adjectives. A common disease, जो बहुत आम पाई जाती है. Rare disease, जो काफ़ी कम पाई जाती है. क्रोनिक डिजीज़, लंबे समय से किसी को जो डिजीज़ है. क्रोनिक का मतलब ये होता है कि लंबे टाइम से चलता आ रहा है जो. Somebody has been suffering from heart problem for the last 10 years or somebody has been experiencing knee pain for 15 years. इस तरह की बीमारी को बोलते हैं क्रोनिक डिजीज़. Then fatal, deadly or terminal disease, disease that ends in death, जिसमें बंदा बचता नहीं है, डेथ हो जाती है. Then curable disease, जिसका इलाज हो सकता है. इनक्योरेबल डिजीज़, जिसका इलाज नहीं हो सकता. आफ्टर दैट कम्युनिकेबल डिजीज़, विच कैन बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. और कम्युनिकेबल के लिए और वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, कंटेजियस और इन्फेक्शस. इसका एंटोनिम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, विच कैन नॉट बी स्प्रेड बाई कॉन्टैक्ट, विच कैन नॉट बी पास्ड ऑन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. और इसके लिए कह सकते हैं आप नॉन कंटेजियस डिजीज़, नॉन इन्फेक्शस डिजीज़. देन इनहेरिटेड डिजीज़, a disease that you get from your parents or grandparents through genes. And waterborne disease, कोई बीमारी जो पानी के थ्रू फैलती है. उसके बाद to have a disease or to suffer from a disease का मतलब कोई बीमारी होना. To die from a disease, किसी बीमारी से मर जाना. To pass on a disease or to spread a disease, दूसरे लोगों को वो डिजीज़ देना. To diagnose a disease, डॉक्टर जो है वो पता लगाता है आपकी बीमारी का, आपके सिम्टम्स को चेक करके उसको बोलते हैं डायग्नोज करना. टू फाइंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम इज. टू प्रिवेंट अ डिजीज़, रोकथाम करनी बीमारी की. टू ट्रीट, टू कंट्रोल और टू मैनेज अ डिजीज़. एंड लास्टली टू क्योर अ डिजीज़, बीमारी को ठीक कर देना, बीमारी का इलाज कर देना. द नेक्स्ट वर्ड ऑन द लिस्ट इज क्योर. ये वर्ड नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज़ किया जाता है. एज अ नाउन इसका मीनिंग है इलाज, और वर्ब की तरह इसका यूज़ करें तो मीनिंग है इलाज करना. देयर इज अनदर वर्ड यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ क्योर एंड दैट वर्ड इज रेमेडी. ओके, लेट्स ट्राई टू यूज दिस वर्ड एज अ नाउन फर्स्ट. Scientists around the world are working hard to find a cure for cancer. To find a cure, इलाज ढूंढना. यहाँ पे ये नाउन की तरह यूज़ हो रहा है. Next, some illnesses can be cured by eating a balanced diet. Can be cured, passive voice construction है. यहाँ पे as a verb यूज़ कर रहे हैं इसको. फिर 2 वर्ड्स आपको और आने चाहिए, curable and incurable. Curable जिसका इलाज किया जा सकता है, incurable जिसका इलाज नहीं किया जा सकता. Next word is heal, ठीक होना या ठीक करना. दोनों ही verbs हैं. But please don't confuse this word with another heal, जो HEEL से लिखा जाता है, उसका मतलब होता है एडी. To heal means to become healthy again or to make someone healthy again after sickness. This word comes from the root which means to make whole. And interestingly, health also comes from the same root. Heal के आगे देखें TH लगा देंगे तो health बन जाएगा. Example, your wound will heal in a few days or your injuries will heal in a few days. Healer is a person who heals other people.
For example, a doctor is a healer. Apart from that, there are many other kinds of healers like faith healers and spiritual healers. Next word, recover. It means to get well after an illness or injury. बीमारी से ठीक हो जाना. वैसे रिकवर किसी भी चीज़ के साथ यूज़ किया जा सकता है. कोई चीज़ जब ख़राब होने के बाद ठीक होती है, बेहतर होती है, तो कहते हैं कि रिकवर कर गई है. फॉर एग्जाम्पल, द इकॉनमी समटाइम्स एंटर्स अ स्लम्प, इट गोज़ इनटू अ रिसेशन. उसके बाद जब इकॉनमी ठीक होती है तो हम कहते हैं कि इकॉनमी रिकवर कर गई है या रिकवर कर रही है. एग्जाम्पल, it normally takes 7 to 10 days to recover from common cold. Then the noun form of recover is recovery. It means the process of becoming well again after an illness or injury. Example, you should start going to office only after full recovery. The next word is sore. If any part of your body is sore, it is painful because of injury, infection or too much use. For example, my feet were sore with all the walking. ये वर्ड सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है जब गला ख़राब हो जाता है, तो कहते हैं आई हैव अ सोर थ्रोट. वैसे सोर का मतलब नाराज़ भी होता है. जैसे अगर आपने कहना है कि वो मुझसे नाराज़ है, तो आप कह सकते हैं कि ही इज़ सोर विद मी और ही इज़ क्रॉस विद मी. एक सिमिलर साउंडिंग वर्ड है SOAR. सोर, उसका मतलब होता है टू राइज हाई इन द एयर. Next is swell, to become larger. सूज कर मोटा हो जाना, because of injury or because of infection. It was obvious that she had broken her wrist because it immediately started to swell. Swell up भी यूज़ किया जा सकता है, one and the same thing. And the noun form of this is swelling, enlargement of a part of the body because of illness or injury. सूजन. Example, the swelling on your face will go away in a few days. The next word is inflamed. Inflamed का मतलब red and swollen. Example, his eyes were sore and inflamed. उसकी आंखों में दर्द हो रहा था और वो लाल थी और सूजी हुई थी. इसका noun form है inflammation, redness, swelling and pain in a part of your body. Example, there is a lot of inflammation around my knee joints. Next word is ache. This can be used as a noun and as a verb. First, let's look at the noun form of this word. Ache का मतलब है जी दर्द. And there can be many kinds of ache. For example, headache, सर दर्द, stomach ache, पेट में दर्द, back ache, पीठ में दर्द, toothache, दांत में दर्द, एंड बॉडी एक. और एक जो है सिवियर भी हो सकती है और माइल्ड भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गॉट अ सिवियर हेड एक और आई हैव गॉट अ माइल्ड स्टमक एक. एंड व्हेन वी यूज दिस वर्ड एज अ वर्ब, इट मीन्स दर्द होना या दर्द करना. फॉर एग्जाम्पल, माई बैक हैज़ बिन एकिंग फॉर अ फ्यू डेज. The next word is feverish. It comes from fever. तो feverish का मतलब है suffering from fever. Example, I am feeling a bit feverish. I hope it's not the coronavirus. The next word is sprain. This word again can be used both as a noun and a verb. As a noun इसका मतलब है मोच, an injury to a joint by sudden movement or twisting. Example, I've got a terrible sprain in my neck. बहुत बुरी मोच आई है मेरे नेक में. And as a verb, इसका मीनिंग है मोच आना. To cause an injury to a joint by sudden movement or twisting. For example, I sprained my ankle while playing tennis. I sprained my ankle. मेरे एंकल में मोच आ गई. मैंने अपने एंकल में मोच डाल ली. ये स्टाइल होता है कहने का टेनिस खेलते समय. The next word is numb, lacking sensation. सुन कहते हैं जैसे मेरा पैर सो गया है, मेरी टांग सो गई है, उस फीलिंग को बोलते हैं numbness. Example, my hands were numb due to cold. इस वर्ड में बी साइलेंट होता है और इस तरह के और भी बड़े सारे वर्ड्स हैं जिसमें
बी साइलेंट होता है। आमतौर पे बी जब एंड में आता है किसी वर्ड में और एम के बाद बी आता है तो वो साइलेंट होता है। आई वुड जस्ट लाइक टू लिस्ट अ फ्यू वर्ड्स ऑफ दिस काइंड फॉर यू। पहला वर्ड है बॉम्ब, इसमें बी नहीं बोलना। क्लाइम, कॉम, डम। डम का मतलब है अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, वैसे बेवकूफ़ आदमी को भी बोलते हैं डम। लैम, अ यंग शीप, भेड़ का बच्चा। लिम, एन आर्म और अ लेग ऑफ अ पर्सन और मे बी एन एनिमल। थम, अंगूठा। और लास्ट वर्ड है टूम, इसका मतलब होता है मकबरा। द नेक्स्ट वर्ड इज indigestion. This is the correct pronunciation. Indigestion. It means pain or discomfort in the stomach due to difficulty in digesting food. हाजमा खराब होना, खाना ना पचा पाना, बदहजमी होना। For example, spicy food always gives me indigestion. ये वर्ड आया है डाइजेस्ट से। डाइजेस्ट का मतलब पचाना, हजम करना खाने को, और उससे फिर वर्ड बनता है डिजेस्शन, पाचन शक्ति, खाना हजम करने की शक्ति, और उससे बना indigestion. The next word is dislocate. To disturb the normal position of a bone in a joint. इसका नाउन होता है dislocation. अपनी जगह से हिल जाती है जब बोन, तो उसको बोलते हैं dislocation. Example, he dislocated his shoulder in the accident. अगला वर्ड है symptom. A physical or mental indicator of an illness. कोई भी साइन, कोई भी लक्षण जिससे पेशेंट की बीमारी का पता चलता है. So I'm just going to list some common symptoms that doctors look for when they diagnose a patient. The first one is fever, high blood pressure, low blood pressure. ये तो सारे डॉक्टर्स चेक करते ही हैं. बाकी सिम्टम्स पेशेंट को बताने पड़ते हैं डॉक्टर को, जिनमें हैं चिल्स एंड शिवरिंग, कंपकंपी छूटती है, एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आना, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी लॉस. नेक्स्ट वर्ड जो है इसको दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं, नोजिया या नौजा. इसका मतलब है उल्टी उल्टी वाली फीलिंग होना. डिजीनेस, चक्कर आना. फटीग, थकावट की फीलिंग होना. स्लीपलेसनेस, नींद ना आ पाना. इसके लिए एक और वर्ड है इंसोम्निया, वील स्टडी दैट लेटर. सोर थ्रोट, गला खराब होना. ड्राई माउथ. लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना. स्वेलिंग, बॉडी के किसी पार्ट में सूजन. रैश, स्किन का लाल हो जाना. इचिंग, खारिश होना. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस चढ़ना थोड़ी सी एक्टिविटी के साथ भी. देन वेट लॉस और वेट गेन, especially if it happens over a short period of time, then it can be a matter of concern. It can indicate some problem, health problem. Hearing loss, कम सुनाई देना. Blurred vision, चीज़ें धुंधली दिखाई देना. Double vision, चीज़ें दो दो दिखाई पड़ना. Nasal discharge, नाक में से पानी बहना. Mucus और phlegm, बलगम. Bloating, पेट में फुलावट की फीलिंग होना. एंड हार्टबर्न, सीने में जलन होना. हार्टबर्न आमतौर पे इंडाइजेशन के कारण ही होता है. द नेक्स्ट वर्ड इज डायग्नोज. टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ एन इलनेस बाय एग्जामिनिंग द सिम्टम्स. बीमारी का पता लगाना. व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, द डॉक्टर विल ट्राई टू डायग्नोज योर प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल, फॉर मेनी ईयर्स डॉक्टर्स कुड नॉट डायग्नोज माई इलनेस. डायग्नोज की नॉन फॉर्म होती है डायग्नोसिस. द एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, पहचान करना. द एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग अ डिजीज फ्रॉम इट्स साइंस एंड सिम्टम्स. फॉर एग्जाम्पल, शी इज एन एक्सपर्ट इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ आई डिजीजेस. डायग्नोसिस से फिर आगे वर्ड बनता है डायग्नोस्टिक, एडजेक्टिव है ये. फॉर एग्जाम्पल, डायग्नोस्टिक सेंटर, ऐसी जगह जहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं. डायग्नोस्टिक टूल्स, उन मशीन्स को बोलते हैं या उन टेस्ट को बोलते हैं जो हेल्प करते हैं डायग्नोसिस में. नेक्स्ट इज प्रिस्क्राइब. टू टेल समबडी व्हाट मेडिसिन दे शुड टेक.
So these three words are very important. When you go to a doctor, he will check your symptoms, he will diagnose your problem or disease, and he will prescribe you medicine. Prescribe के लिए example sentence: This drug is often prescribed for ulcers. ये ड्रग आमतौर पे रिकमेंड किया जाता है, डॉक्टर्स द्वारा दिया जाता है अल्सर्स के लिए. इसका नाउन फॉर्म है प्रिस्क्रिप्शन. A piece of paper on which a doctor writes the details of the medicine or drugs that someone needs. जो डॉक्टर की पर्ची है उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन. Example: You cannot buy this drug without a medical prescription. There are many drugs which you can buy from a pharmacy or drug store or a chemist shop only if you have a doctor's prescription. ऐसे drugs को बोला जाता है prescription drugs or prescription medicine. Then there are some drugs which you can buy without a doctor's prescription. ऐसे drugs को बोला जाता है non-prescription drugs. The next word is drug. Drug का मतलब होता है medicine. Example: The new drug could be an important step in the fight against cancer. देखें, ड्रग का मतलब बेसिकली पॉजिटिव है. ड्रग का मतलब मेडिसिन है, और जब ड्रग्स को यूज़ किया जाता है फॉर इंटॉक्सिकेशन, नशे के लिए, उनको मिस यूज़ जब करेंगे तो फिर दैट कैन बिकम अ प्रॉब्लम. उसको बोलते हैं ड्रग एब्यूज़. सो ड्रग एब्यूज़ इज़ बिकमिंग अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. इससे और वर्ड जो आते हैं वो हैं ड्रग स्टोर, बेसिकली ए केमिस्ट शॉप, अ ड्रगिस्ट, केमिस्ट को बोलते हैं, और ड्रग ओवरडोज, जितनी मात्रा में लेना चाहिए उससे ज़्यादा ले लेगा कोई बंदा तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है. द नेक्स्ट वर्ड इज फार्मेसी. इट्स बेसिकली अ ड्रग स्टोर, अ प्लेस वेयर पीपल गो टू बाय मेडिकेशन एंड अदर मेडिकल सप्लाईज. और फार्मेसी का इंचार्ज होता है फार्मासिस्ट, अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू प्रिपेयर एंड प्रोवाइड मेडिसिनल ड्रग्स टू पीपल. Example: This medicine is not available in the hospital pharmacy, so you'll have to buy it from outside. The next word is pharmaceutical. इसका मतलब है दवाइयों से संबंधित, relating to medicinal drugs or their preparation, use or sale. Pharmaceutical companies कहते हैं medicines बनाने वाली सारी companies को. Example: Pharmaceutical companies are making big bucks from our ill health. Next is medicinal. इसका मतलब होता है having healing properties. Example: There are many medicinal uses of honey. In the same way, there are many medicinal uses of tea, ginger, garlic, tulsi, etc. Next word is tablet. इसका मतलब होता है गोली, pill. I have to take this tablet every day. Next word is over the counter. Medicine that can be bought from a shop without a prescription from a doctor. जो हमने पहले किया था नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, उनको ओवर द काउंटर ड्रग्स भी कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्रिन इज एन ओवर द काउंटर ड्रग इन इंडिया. नेक्स्ट, साइड इफेक्ट्स. Secondary and often unwanted effects of a drug. For example, one of the side effects of this drug is drowsiness, so you are advised not to drive after taking it. Drowsiness का मतलब होता है feeling very sleepy or tired during the day. The next word is tumour, an abnormal new mass of tissue that serves no purpose. Body के किसी पार्ट में कोई ग्रोथ हो जाती है, कोई गांठ बन जाती है, उसको बोलते हैं ट्यूमर. एग्जाम्पल: द डॉक्टर परफॉर्म्ड अ सर्जरी टू रिमूव अ ट्यूमर फ्रॉम हिज स्टमक. द नेक्स्ट वर्ड इज बायोप्सी. इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ ह्यूमन टिश्यू इन ऑर्डर टू कंडक्ट सर्टन मेडिकल टेस्ट्स. ट्यूमर का सैंपल लिया जाता है चेक करने के लिए कि वो कैंसरस है या नहीं. नेक्स्ट, malignant का मतलब होता है बुरा, evil, harmful, cancerous. For example, I hope the tumor is not malignant. I am waiting for the biopsy result. The next word is benign. इसमें G silent है. Benign का मतलब harmless, not dangerous, not cancerous. Example: The doctor says that the tumor in my lung is benign.
तो बॉडी में ट्यूमर जो है वो malignant भी हो सकता है, कैंसरस, या benign हो सकता है विच इज़ नॉट कैंसरस, और ये पता चलता है बायोप्सी रिजल्ट आने के बाद. द नेक्स्ट वर्ड इज amputate. इसका मतलब होता है टू कट ऑफ एन आर्म और अ लेग बाई सर्जरी. एग्जाम्पल, द डॉक्टर्स हैड टू amputate his foot in order to save his life. amputate से बनता है amputation, द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ एन आर्म और अ लेग, और वो जो बंदा है उसको बोलते हैं amputee, somebody whose arm or leg has been removed by surgery. The next word is seizure, a sudden attack of a disease often characterized by spasms. Spasm का मतलब है involuntary contraction of a muscle. बॉडी में uncontrollable मरोड़ उठते हैं, बंदा twist and turn करता है. For example, yesterday he had a seizure while taking a bath. ये जो वर्ड है इसमें ये साउंड कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है. सम पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस. ये वर्ड है सीजर. तो ये र की जो साउंड है वी डोंट हैव इट इन हिंदी और पंजाबी. आई वुड जस्ट लाइक टू लिस्ट सम मोर वर्ड्स फॉर यू जिसमें ये साउंड यूज़ होती है. ये साउंड जो है असल में य और ज की मिक्स साउंड है. जो साउंड आती है टेलीविज़न में, जहाँ एस आता है टेलीविज़न में, टेलीविज, ये साउंड टेलीविज़न. कुछ और वर्ड्स जिनमें ये साउंड यूज़ होती है: यूजुअल, वर्जन, लग्जरी, डिसीजन, गराज, मजर, लजर, प्लेजर, ट्रेजर, और एक कलर होता है बेज. कैमल कलर को बोलते हैं बेज.